So let us go ahead towards the first official lecture of economics after your 12th standard exams. So in our lecture today, I'm going to describe cost analysis, or people call it as theory of cost. Theory of cost. Cost analysis or theory of cost. Now, the first question that we come across is, what do we mean by cost? What do we mean by cost? Cost refers to amount incurred by the producer for production of goods and services. It refers to the amount incurred by the producer for production of goods and services. Now, ये theory of cost है या फिर actual name of that chapter would be cost analysis. तो यहाँ पे हम कॉस्ट को स्टडी करने वाले हैं. एनालिसिस मतलब क्या स्टडी करने वाले हैं? तो इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी behavior of the cost. Behavior of the cost in relation to production. Cost analysis मतलब behavior of cost in relation to the production. Now, here, when we describe that cost is to be studied in detail, तो यहाँ पे हमको एक बहुत ही important point ध्यान में रखना है. See, we are going to describe one important point with respect to cost. That is, a businessman should understand cost function of his business. किसी भी बिजनेसमैन को अपने बिजनेस का कॉस्ट फंक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इफ आई स्पीक, C plus P is equal to S. That is, cost plus profit is equal to selling price. तो जितना अपना cost concept ज्यादा रहेगा, higher the level of cost, lower will be the profitability. Higher cost, lower profitability, and therefore it is very important for a businessman to understand the behavior of cost in an organization. तो जहां तक कॉस्ट का सवाल है, अकाउंट्स के इकोनॉमिक्स में cost can be broadly divided into two parts. ऐसे तो बहुत सारे टाइप से हम एक एक करके देखेंगे, बट बेसिक जो इसके दो पार्ट्स हैं, कॉस्ट दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरे होते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. explicit cost or and implicit cost. Now, what are explicit cost and what are implicit cost? Explicit cost बोल दिया मतलब the cost which are actually paid
बाय बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जो कॉस्ट एक्चुअली पे करता है, उस कॉस्ट को हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। अकाउंट्स में हम उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। तो द कॉस्ट विच आर एक्चुअली पेड आर कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अभी जैसे इफ आई टेक अप एन एग्जांपल, आपने अपने अपने लिए कोचिंग किया, यू हैव जॉइंड अप द कोचिंग क्लासेस, तो आपके पेरेंट ने कोचिंग क्लासेस के लिए पे किया है, तो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नाउ implicit costs are not paid. The cost of resources owned by businessmen, ये पे नहीं किए जाते मगर कॉस्टिंग में गिनती की जाती है इसकी। The cost of the resources which are owned up by the businessmen। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक्सप्लिसिट कॉस्ट के वक्त में आपको क्या बताया था, दैट योर पेरेंट्स हैव पेड फीस फॉर योर कोचिंग of CA course, of CS course, they have paid the fees. So that is actually paid, therefore it is explicit cost. But now I should tell you an example of implicit cost. अभी जैसे for example, I can take example of my child. I will take example of my child. In this March and April, he appeared for 10th standard exam. Now, after appearing for 10th standard exam, now he is totally decided that he will come up for the commerce faculty and he will pursue chartered accountancy course. तो अभी वो जब कॉमर्स में आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आएगा, तो डू यू थिंक आई एम गोइंग टू चार्ज द फीस टू हिम or will I pay fees to myself? I will not pay fees. I will not pay fees for myself. मैं ही पढ़ा रहा हूं और मैं अपने आप के लिए फीस चार्ज करूंगा? नहीं, नहीं होगा। सो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये रिसोर्सेस किसने ओन किए हैं? मैंने खुद ने, बिजनेसमैन ने खुद ने ओन किए हैं। तो इसका जो कॉस्ट रहेगा उसको हम इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने वेजेस पे किया, तो वो कौन सा कॉस्ट रहेगा? इसमें किसी का लॉगिन करके दो ना मैडम। आपने अगर वेजेस पे किया है, तो ये वेजेस कौन से टाइप का कॉस्ट रहेगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हमने पे किया तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट रहेगा। मगर अभी मेरे पास एक दुकान था, खुद का ही दुकान था, वहां पे मैंने अभी ऑफिस चालू किया खुद का। विल आई पे रेंट for that shop? No, I will not pay rent for that shop. So it would be called as implicit cost. Are you getting that two different important concept? Explicit cost and implicit cost. अभी हम और दूसरे दो टाइप के कॉस्ट देखते हैं। दूसरे दो टाइप के कॉस्ट और रहेंगे। एक रहेगा अकाउंटिंग कॉस्ट और दूसरा रहेगा हेलो हेलो, कैन यू हियर मी?
Okay, thank you. So अभी यहाँ पे और दो टाइप के कॉस्ट है, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। ये सब कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, अकाउंटिंग कॉस्ट अगर सीरियसली हम देखेंगे तो इट सेज दैट द कॉस्ट which are recorded in the books of accounts. The cost which are recorded in the books of accounts are called as accounting cost. तो अभी कौन से कॉस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? तो कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे जो एक्चुअली पेड रहेंगे। द कॉस्ट विच आर पेड और आई कैन से इनकर्ड। पेड भी हो सकते, इनकर्ड भी हो सकते। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम? डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन देम? इनकर्ड का मतलब क्या रहेगा दिशा? व्हाट डू वी मीन बाय इनकर्ड? अकाउंटिंग वर्ड बोल दो इसके बारे में, खाली एक अकाउंटिंग वर्ड है उसके लिए। क्या हो गया दिशा? आप और वर्तक टाइप कर रहे थे मगर रुक गए। बोलो, इनकर्ड का मतलब क्या रहेगा? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। क्या हो गया दिशा? आप और वर्तक टाइप कर रहे थे मगर रुक गए। बोलो, इनकर्ड का मतलब क्या रहेगा? रिसीवेबल, गलत। गलत। देवांशु, गलत है आंसर। कुंज शाह, बोलो। ये उस दिन भी ग्रुप में कुछ बोल रहा था ना, बाद में बात करते। कुंज। अनप्लेजेंट, माय गॉड। देबाशीष, ये क्या था आंसर? अनप्लेजेंट। यस, उत्कर्षा करेक्ट है। ड्यू, या फिर अकाउंटिंग के अंदर हम उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। सिंपल। इनकर्ड है मगर पे नहीं किया। ओके, तो ये पे किया हुआ हो सकता है या अनपेड भी हो सकता है, मगर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होगा, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होगा, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट
अगर आप यहाँ पे अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में हम जब देखते हैं तो मैंने यहाँ पे भी देखो बताया था एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मैंने क्या बताया, विच आर एक्चुअली पेड. तो कैन आई से अकाउंटिंग कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर वन एंड द सेम. अकाउंटिंग कॉस्ट is equal to explicit cost. Keep it in mind. इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या रहेगा? इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब रहेगा अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट. अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस implicit cost, या फिर some people call it as explicit cost plus implicit cost. It is the sum total of the actual cost paid plus cost of the resources owned by the businessman. मतलब economic cost will include both type of cost. कौन कौन से? both accounting, or we can say explicit cost and implicit cost, दोनों include करेंगे. okay? अभी देखो अब तक हमने 4 टाइप के कॉस्ट पढ़ दिए: explicit cost, implicit cost, accounting cost, economic cost. Now we are going to describe the next type of cost called as outlay cost. Next type of cost called as outlay cost. मतलब क्या? What does that outlay? outlay का मतलब क्या रहेगा? And इसके साथ साथ हम दूसरा एक कॉस्ट पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. 2 कॉस्ट एक साथ पढ़ेंगे. okay? Now आउटले कॉस्ट का मैं एक एग्जांपल देता हूं जहां पे क्या रहेगा. फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट्स के अंदर, 12th के अंदर अकाउंट्स के अंदर बहुत बार एक एडजस्टमेंट देखा रहेगा. बहुत बार एक एडजस्टमेंट आता है, वेजेस ₹5,000 पेड फॉर installation of a new machinery debited to wages account. ये ऐसा एक एडजस्टमेंट देखा है बहुत बार. wages paid for installation of new machinery added or included into wages account. तो ऐसे एडजस्टमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं? आविष्कार, ये एडजस्टमेंट को हम क्या करेंगे? कैसे रेक्टिफाई करेंगे? वी हैव टू रेक्टिफाई. एडजस्टमेंट है मतलब कैसे रेक्टिफाई करते हैं इसको हम? लेस फ्रॉम वेजेस एंड एड टू मशीनरी. वेरी गुड. मतलब यहाँ पे हमने आउटले क्लियर कर दिया, ये कॉस्ट का खर्चा क्लियर कर दिया कि कॉस्ट है, ये उस एसेट के ऊपर हुआ है, ये उस मशीनरी के ऊपर हुआ है, इसके लिए ये नॉर्मल वेजेस के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं और उसको हम क्या करते हैं? एसेट के अंदर ऐड करते हैं. हम उसको आउटले कर देते हैं. मतलब जिस चीज से रिलेटेड वो खर्चा है उसी चीज से रिलेटेड उसको रिलेट करना, देन दैट वुड बी कॉल्ड एज आउटले कॉस्ट. That would be called as outlay cost.
दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, I am teaching into coaching classes. I am teaching into coaching classes. That is my occupation. But मेरे लिए next best alternative क्या है? तो I can go and join, teach into some college. I can go and teach into some college. तो वहां पे जब मैं कॉलेज का अपॉर्चुनिटी छोड़ देता हूं, मैंने कॉलेज नहीं ज्वाइन किया एंड आई हैव ज्वाइन कोचिंग क्लासेस। से कोचिंग क्लासेस में मुझको 50,000 मिल रहा है एंड से कॉलेज में मुझको 40,000 मिल रहा था। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर मी वाज कॉलेज। मैंने उसको छोड़ दिया, तो दैट 40,000 इज माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अभी यहाँ पे क्या होता है कि आपको बहुत बार और दूसरे टाइप के भी कॉस्ट आते हैं, कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, अभी क्या होता है, कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जिसको हम डायरेक्टली किसी एक एक्टिविटी या फिर किसी प्रोडक्ट या किसी प्रोजेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। द कॉस्ट विच आर रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑपरेशन, एक्टिविटी और प्लांट। अभी आज जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। अगर आप ऑब्जर्व करना, ये जो कंपनी है ये मल्टीपल बिजनेसेस करती है। इनका एक यूनिट है टाटा मोटर्स, दूसरा यूनिट है टाटा सॉल्ट, तीसरा यूनिट है टाइटन वॉचेस। टाइटन वॉचेस टाटा के प्रोडक्ट है। फिर इनका एक ज्वेलरी बिजनेस भी है, तनिष्क। तनिष्क भी उनका ही ब्रांड है। मैं अपने एग्जांपल के लिए इतने लेता हूं, ये तीन, टाटा मोटर्स, टाटा सॉल्ट या टाइटन। अभी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक बड़ा मशीन परचेज किया। दे परचेज्ड वन मशीन, दे इनकर्ड द कॉस्ट।